Good morning, class. I will give you next lecture on electricity. In previous lecture, I will teach you. I would already taught you the series and parallel already omitted in this session. I will teach you. I will teach you. आज हम आपको क्या पढ़ाना है? इससे आगे पढ़ाएंगे ओम्स लॉ फेलियर और ओम्स लॉ के बाद से पढ़ाएंगे और पोटेंशियोमीटर तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा और देखिए आगे पढ़ाते हैं। फर्स्ट है ईएमएफ। इट इज ए वर्क डन टू ब्रिंग an electron from negative terminal of the negative terminal to positive terminal in open circuit. It is denoted by E or E. Terminal voltage SI unit volt. Actually, EMF is a misnomer. EMF means होता है electromotive force. Initially, the scientists thought that the current flowing through the wire due to battery is due to the external force applied by the battery in the circuit. वो समझे थे कि वायर में इलेक्ट्रॉन है, बैटरी से जैसे जोड़ेंगे तो बैटरी प्रोवाइड करेगा फोर्स, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। ऐसा लोगों को सोचना था पहले के साइंटिस्ट का, इसलिए ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोले। लेकिन ये मिसनोमर है क्योंकि इट इज ए वर्क डन। ये एक तरह का वर्क डन है, वर्क डन टू ब्रिंग an electron from negative terminal to positive terminal in open circuit. Open circuit में नेगेटिव से पॉजिटिव तक ले जाने में जितना काम करना पड़ता है, that is the EMF of the battery. It is denoted by small e और capital E SI unit volt होता है। एक दूसरा टर्म है टर्मिनल वोल्टेज। It is a work done to bring an electron from negative terminal to positive terminal in closed circuit. It is denoted by V. सिर्फ यही अंतर है क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। ईएमएफ जब होगा तो ओपन सर्किट में होगा और जब टर्मिनल वोल्टेज होगा तो क्लोज सर्किट में होगा। बस इतना दिमाग में रखना है। इंटरनल रेजिस्टेंस एक और टर्म इसमें है। इट इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी of electrolyte by which it has tendency to oppose the flow of electron. It is denoted by small r SI unit ohm. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Internal resistance depends on following factors. Internal resistance
depends on following factors. First, nature of electrolyte. दूसरा, concentration of electrolyte. Nature of electrolyte, concentration of electrolyte. Third, temperature of electrolyte. Fourth, viscosity of electrolyte. Fifth, separation between the electrodes. Sixth, area of cross section of electrodes. ये 6 चीज पर डिपेंड करता है. तो 3 टर्म, सेल का 3 इंपॉर्टेंट टर्म था. सेल क्या? सेल इज अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy and provide constant potential in the circuit. सेल में 3 इंपॉर्टेंट टर्म है. पहला है ईएमएफ, दूसरा है टर्मिनल वोल्टेज और तीसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस. ईएमएफ इज अ वर्क डन टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल in an open circuit. And second one, terminal voltage, it is a work done to bring an electron from negative terminal to positive terminal in a closed circuit. During this movement of electron from negative to positive, electron will face some problem during flow, and this problem is called internal resistance of the cell. It is denoted by R. It depends on 6 factors. First, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैसा नेचर है. कंसंट्रेशन, इस एक ही इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हाई होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा एक्वस हो जाएगा तो फिर कम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा. उसमें कितना विस्कोसिटी है, उसका क्या टेम्परेचर है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊपर भी रेजिस्टेंस बढ़ सकता है. उसके अलावा सेपरेशन, ज्यादा दूर तक रहेगा तो उसको ज्यादा बर्डन करना पड़ेगा. और चौथा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा. तो ये दीज आर द फैक्टर which on which internal resistance of the cell depends. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. अब रिलेशन बताते हैं. रिलेशन बिटवीन E R and V. Consider there be a cell of EMF E, internal resistance R, attached with a resistor, external resistance capital R. Consider there be a cell of EMF E, internal resistance small r, attached with external resistance capital R. तो टोटल EMF कितना होगा? टोटल EMF इज इक्वल टू E. टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा? R प्लस R. Therefore I is equal to total EMF by total resistance. Total EMF E, R plus R, cross multiply IR plus IR is equal to E. IR is equal to E minus IR. IR is equal to ओम्स लॉ से V होता है, तो V is equal to E minus IR. I का वैल्यू पुट कर सकते. ये फॉर्मूला हुआ, ये डिस्चार्जिंग में हुआ. अगर ये चार्ज होगा, माने करंट इसमें इंटर करे सोर्स से, ये डिस्चार्जिंग का हुआ.
अगर चार्जिंग के केस में चले तो ये सोर्स होगा, सोर्स का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ये करंट इसमें इंटर करेगा तो करंट नेगेटिव हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। इस केस में V इज इक्वल टू, ये चार्जिंग के केस में है तो यहाँ V इज ग्रेटर देन ई होता है चार्जिंग के केस में, यहाँ V इज लेस देन ई होता है। इफ द सेल इज आइडियल, अगर सेल आइडियल है देन R इज इक्वल टू 0, देखो V इज इक्वल टू ई होगा। इस तरह से आप ग्राफ देख सकते हैं, चार्जिंग इसका ग्राफ भी हो सकता है, ईएमएफ से थोड़ा कम जाएगा इसका, इसमें ईएमएफ ही ज्यादा हो जाएगा और वो दोनों इक्वल होगा। इस रिलेशन को देखिए। अब हम ग्रुपिंग ऑफ सेल बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ग्रुपिंग ऑफ सेल, पहला सीरीज, when negative terminal of first cell attached with positive terminal of second cell, now negative terminal of second cell is attached with positive terminal of third cell and so on with external resistance is called सीरीज कॉम्बिनेशन। मानते एक सेल है जिसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे के पॉजिटिव से डॉट 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 ऐसा एन सेल तक रहा, अटैच विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ईच ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। Consider there the N cells, each of EMF E, internal resistance small r are attached in series with external resistance capital R. The total EMF will be E ऐसा n तक गया तो total EMF NE. Total internal resistance they are in series. This is equal to NR. Total resistance, this is NR plus R, therefore I is equal to total EMF by total resistance, NE by NR plus R. If R is very greater than R, then I is equal to E by R, then it will behave as single cell की तरह behave करेगा if R is very greater than R होगा। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एन आइडेंटिकल सेल है, इसका ईच का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, अटैच विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो टोटल ईएमएफ एनई हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर, टोटल रेजिस्टेंस एनआर प्लस कैपिटल आर, तो ईएमएफ बराबर टोटल ईएमएफ टोटल रेजिस्टेंस। अगर आर एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो वो सिंगल सेल की तरह बिहेव करेगा सीरीज में होने के बाद भी। ओके, नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन। Parallel combination
if two or more than two cells are attached in such a way, positive terminal of each cell are attached. Positive terminal each cell is attached at one point, while negative terminals of each cell is attached at other point with external resistance. Then it is called पैरेलल कॉम्बिनेशन। तब ऐसे को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। मानते सेल है, ईएमएफ इंटरनल आर है, दूसरा सेल है, ईएमएफ ई है, इंटरनल आर है, ऐसा ऐसा एम सेल्स है विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर है। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? ई होगा। पैरेलल में एक ही ईएमएफ लिया जाएगा, टोटल ई है फिर भी एक ही लिया जाएगा ई। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? दे आर इन पैरेलल, हो जाएगा आर बाई एन। टोटल रेसिस्टेंस आर बाई एन प्लस आर, दैट इज आर प्लस एन आर बाई एन। तो आई बराबर होगा टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस, तो ई बाई आर प्लस एन आर बाई एन। इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर, देन एन सेल्स की तरह बिहेव करेगा, एन सेल्स की तरह बिहेव करेगा। ऐसा नोट कीजिए, अगर प्रत्येक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर और नेगेटिव टर्मिनल अदर पॉइंट पर अटैच्ड है विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो ऐसे कॉम्बिनेशन वो कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। एन आइडेंटिकल सेल है, ईच ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल से स्मॉलर, whose positive terminal attached at one point, negative terminal are attached at other point with external say R. These are in parallel, so EMF is only single. इसका प्रत्येक का ही है तो ही लिया जाएगा। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस R by N हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस R by N प्लस कैपिटल R, तो एलसीएम लेंगे तो R प्लस NR by N, तो I बराबर टोटल EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस, ये N ऊपर चला गया। अगर R बहुत बड़ा है तो NR को नेग्लेक्ट करेंगे तो NE बाई E हो जाएगा, N सेल की तरह बिहेव करेगा ये। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही अगर डिफरेंट सेल हो तो ये तो सेम सेल रहा जिसका EMF डिफरेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चीज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MI मानते दो सेल है, इसका EMF E1 है, इंटरनल से R1, दूसरा सेल है इसका E2 है, इंटरनल से R2 है, अटैच विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। यहां से मानते हैं I1 करंट फ्लो किया, यहां पर I2 करंट फ्लो किया, इसमें करंट फ्लो किया I। लेट देयर बी टू cells having EMF E1 and E2, internal resistance R1 and R2, they are attached in parallel with external resistance
कैपिटल आर से जुड़ा हुआ है। देन आई बराबर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। फॉर्मूला पढ़े थे कि V इज इक्वल टू E माइनस IR। I इज इक्वल टू V E माइनस V बाई R। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काम आएगा इसमें। मानते हैं इस दोनों के बदले में E इक्विवेलेंट है, E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट हो गया विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब इसमें करंट तो I फ्लो होगा। पहले वाले के लिए चलते हैं तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट सेल I1 इज इक्वल टू E1 बाई V बाई R1। I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V बाई R2 सेकंड सेल के लिए। और इसके लिए I इज इक्वल टू हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट। वी नो दैट I बराबर I1 प्लस R2, तो I का वैल्यू पुट करते हैं E इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट। दिस इज इक्वल टू I1 बराबर E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। इसको अलग अलग तोड़ देते हैं, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इस तरह से करेंगे। एलसीएम ले लेते हैं एक बार। E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 इंटू R2 माइनस V R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2। इस तरह का है। इसको नोट कीजिए पहले, स्क्रीनशॉट उसके आगे बताएंगे। ओके, इससे आगे चलते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करते हैं। तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो दो भाग में E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। और उसको कंपेयर करेंगे तो V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2। V से V कैंसल, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको उलट देते हैं, कितना हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 इंटू R2 इंटू R इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये कैंसिल हो जाएगा। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट हुआ, ये R इक्विवेलेंट हुआ। इस तरह से एग्जाम में प्रूफ करने आता है और एक दो बार बोर्ड में भी आया है, तो इसको ध्यान देना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और हम चलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग में। मिक्स्ड ग्रुपिंग, let there be mn number of cells, each of EMF E internal resistance small r, in which n number of cells are attached in series while such n number of
m number of arrangements are attached in parallel. n number of cells है, each का EMF E, internal small r, such arrangements m number of arrangements are attached in parallel with external resistance capital R. With external resistance तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? टोटल ईएमएफ सिर्फ सीरीज वाला लेंगे, पैरेलल वाला लिया नहीं जाता है क्योंकि सब सेम है। यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा? इसका सीरीज में एनआर और उसका पैरेलल में एम है, एनआर बाय एम हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? एनआर बाय एम प्लस आर, एलसीएम एनआर प्लस एमआर बाय एम। आई बराबर होगा टोटल ईएमएफ, एम ऊपर चला जाएगा, एम एन ई बाय एनआर प्लस एमआर। ये रिजल्ट है। एंड दिस विल बी मैक्सिमम, I will be maximum if NR बराबर MR और N by M is equal to R by R। इस तरह से ये कंडीशन याद रखना होगा। N आइडेंटिकल सेल्स है, Mn नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स है, NR attached in series, such arrangements M number of arrangements are attached in parallel। तो टोटल EMF हो गया, यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर बाई एम, पैरेलल में है तो उसको डिवाइड कर दिए, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ दिए, तो आई टोटल करंट बराबर क्या हो जाएगा? टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस एम एन ई बाय एनआर प्लस एमआर। ये मैक्सिमम होगा, आई विल बी मैक्सिमम जब ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी एम बाय एन बराबर आर बाई आर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। किरचॉफ्स लॉ, पहला है जंक्शन रूल। When two and more than two current meeting at a point, their algebraic sum is equal to 0। अगर एग्जाम में आएगा तो स्टेटमेंट ऐसा ही लिखना है। इसका इट फॉलोज द कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। दूसरा है लूप रूल। इन ए क्लोज लूप टोटल ईएमएफ of the circuit is equal to potential of each resistor प्रत्येक रेसिस्टर के पोटेंशियल को क्लोज टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ईच। इट फॉलोज द कंजर्वेशन थ्योरी follows the conservation theory of energy, एनर्जी के कंजर्वेशन थ्योरी को फॉलो करता है।
The junction rule हुआ फर्स्ट, लूप रूल हुआ सेकंड। अब क्वेश्चन जब भी परीक्षा में आएगा, एग्जाम में आएगा, तो स्टेट किरचॉफ लॉ तो इतना ही लिखना है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए साइन कन्वेंशन होना जरूरी है। तो पहले रूल का साइन कन्वेंशन ऑफ फर्स्ट रूल, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं। अगर ये करंट I1 जा रहा है, दूसरा I2 जा रहा है, तीसरा I3 आ रहा है, एक पॉइंट पर मिल रहा है, तो जब जो आएगा उसको पॉजिटिव मान लीजिए और जो जाएगा वो उसको निगेटिव मान लीजिए। दिस इज इक्वल टू 0, दैट इज I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं आप। ये साइन कन्वेंशन ऑफ सेकंड रूल, साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर सेकंड रूल। अलग अलग टीचर का अलग अलग साइन कन्वेंशन हो सकता है, इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। आपको एक साइन कन्वेंशन फॉलो करता है, जो आप स्ट्रिक्टली समझ जाइए उसी को फॉलो कीजिए। हम ये नहीं कहते अगर आप पहले से समझे हुए हैं कि इसका साइन कन्वेंशन ये है तो जरूरी नहीं कि इसको फॉलो करें, आप उसी तरीके से बनाइए जैसे आपको समझ में आता है। लेकिन मेरा वाला हम होप करते हैं कि ये वाला इजी ही होगा और सबसे इजी होगा, क्योंकि हम बहुत इजी वे में इसको समझाते हैं। फर्स्ट है, पहला है इसका साइन कन्वेंशन कि करंट इमिट्स फ्रॉम, इसको लिख लीजिए, तो उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसको लिखाते हैं। ओके, साइन कन्वेंशन फॉर सेकंड रूल। पहला, करंट ऑलवेज emits from positive terminal of the battery having maximum EMF। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हैविंग मैक्सिमम, जो बैटरी का मैक्सिमम होगा उसी से करंट निकालेंगे। फिर दूसरे किसी बैटरी को बारे में नहीं सोचना, उसी से निकालेंगे। अगर सिंगल बैटरी है तब तो उसी से निकालेंगे, अगर कोई बैटरी नहीं तो उसका ईएमएफ 0 मानेंगे। ओके, नाउ सेकंड, अगर करंट निकल रहा निगेटिव टर्मिनल से किसी दूसरे एक बैटरी से निकाले, बाकी 2-3 बैटरी उसके निगेटिव से निकल रहा है, तो ईएमएफ निगेटिव लेंगे, निगेटिव ईएमएफ। अगर हम पॉजिटिव से निकालेंगे तो ईएमएफ पॉजिटिव ईएमएफ होगा। ओके, अगर करंट पॉजिटिव से निकाला तो पॉजिटिव ईएमएफ, नेगेटिव से निकालेंगे तो नेगेटिव ईएमएफ। तीसरा, व्हेन लूप इज टेकन दैट बैटरी मस्ट कम इन द लूप। उस बैटरी को जरूर लेंगे जिससे हम करंट निकाले थे फर्स्ट वाले बैटरी मैक्सिमम का। 2 से ज्यादा हो तभी ऐसा करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा। एक है सिंगल है तो फिर तो सोचना ही नहीं है, और नहीं है तो फिर 0 ईएमएफ होता ही है। चौथा क्या है, करंट ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, ऑलवेज टेकन पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्शन में करंट हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ये 4 पॉइंट को फॉलो करेंगे न्यूमेरिकल बनाने के समय। तो इस पर एक हम न्यूमेरिकल बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये परीक्षा में एग्जाम में नहीं लिखना है, जब भी स्टेट करना आएगा तो 2 पहले जो सेंटेंस लिखवाए थे उसी को लिखना है। ये न्यूमेरिकल बनाने में आपको मदद मिलेगा। मानते एक बैटरी है 10 वोल्ट 5 ओम, दूसरी बैटरी है 20 वोल्ट 2 ओम, तीसरी बैटरी है 30 वोल्ट 1 ओम। फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। फाइंड द करंट थ्रू
ईच ब्रांच, प्रत्येक ब्रांच से करंट क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें बैटरी में नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। सबसे पहले देखेंगे 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, तीन बैटरी है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 30 वोल्ट, उसके पॉजिटिव से करंट निकाल। ओके, निकल गया। अब यहाँ पहुंचा तो दो भाग में बढ़ गया, एक इधर एक इधर। इधर अगर हम I1 मानते हैं तो बाकी जो बच गया I माइनस I1 हो गया, फर्स्ट रूल से, जंक्शन रूल से घट करके उसमें से आ जाएगा। ये आगे बढ़ा, यहाँ चला गया I माइनस I1, ये भी आगे बढ़ा, I बन गया। ये दोनों आपस में यहाँ करके मिला तो फिर ये I हो गया। और जितना करंट यहाँ से निकला था उतना ही करंट फिर इंटर किया। अब हम इससे निकालें तो जब भी लूप लेंगे तो इस बैटरी को लेना बहुत जरूरी है। तो इस लूप में लेते हैं, इन लूप ए बी सी डी ए, इन क्लोज लूप ए बी सी डी ए बी सी डी ए। 30 पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव से निकल रहा है, 20 निगेटिव होगा क्योंकि निगेटिव से निकल रहा है। इसका हो जाएगा I, इसका हो जाएगा 2I1। 10 इज इक्वल टू I प्लस 2I1, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इस बैटरी को फिर लेना बहुत जरूरी है। तो ए बी सी डी ई एफ ए इन क्लोज लूप ए बी सी डी ई एफ ए। तो इसमें दो बैटरी है, एक ये और ये पॉजिटिव से निकल रहा है, इससे पॉजिटिव लिए, आगे बढ़े निगेटिव से निकल रहा है तो इसको निगेटिव लेंगे। दिस इज इक्वल टू करंट ऑलवेज पॉजिटिव, I प्लस 5I माइनस 5I1। तो 20 इज इक्वल टू 6I माइनस 5I1। ये दो इक्वेशन हो गया और हमको सॉल्व कर लेना है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 50 इज इक्वल टू 5I प्लस 10I1। और इसका हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 12I और माइनस 10I1। जोड़ते हैं 17I इज इक्वल टू 90, I इज इक्वल टू 90/7। अब किसी एक वैल्यू पुट कर देते हैं, मानते इसी में करते हैं। तो 10 इज इक्वल टू I बराबर 90/7 और प्लस 2I1। इसको इधर लाते हैं, 70 माइनस 20/7 इंटू 2 बराबर I1। तो ये 2 10 कट गया। I1 इज इक्वल टू माइनस 10/7। माइनस 10/7 का मतलब हुआ कि करंट इधर ना जाकर के करंट इधर से निकल रहा है, तो हमारा माइनस में आया, इसलिए हम सोचेंगे करंट इधर से निकल रहा है। अभी I माइनस I1 क्या होगा, I माइनस I1, I निकल गया कितना 90/7 और माइनस I1 प्लस हो जाएगा 10/7, कितना हो जाएगा 100/7 एम्पियर। इतना एम्पियर हुआ, इतना एम्पियर हुआ, इतना एम्पियर हुआ। I1 इज इक्वल टू 10/7 इन रिवर्स एम्पियर, इन रिवर्स ऑर्डर। जितना भी लिखे रिवर्स ऑर्डर में उसको हम सोच लेंगे आंसर। इस तरह से सॉल्व होगा। ओके, इसको और भी हम इस पर कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, इसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप इसको देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज बढ़ाइए सब्सक्राइबर ताकि हमको थोड़ा सा मिले, प्रोत्साहन मिले। लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ओके, बाय। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।